Good morning, dear students. Students, we are doing chapter number 4 in accountancy class 12, admission of a new partner. In this chapter, currently we are doing accounting treatment of goodwill. Okay. And in previous lecture, we have discussed first two cases. In first of all, when new partner bring his share of goodwill in cash, but privately. So at that case, there is no requirement to pass any journal entry, right? And second case, when the new partner bring his share of goodwill in cash. Okay. Or in this case, we have discussed two types, 2 points. First one, when new partner bring his share of goodwill in cash and old partners retain that portion in the business. Okay. So at that case, only two entries we will pass. First is the cash account debit to premium for goodwill account. And second is the premium for goodwill account debit to old partners capital account in sacrificing ratio, right? And second point, in second case, that is the when goodwill premium brought in by the new partner is withdrawn by the old partner. Okay, मीन्स जो शेयर नया पार्टनर लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस में से. सो देन वन एक्स्ट्रा एंट्री, वन एडिशनल एंट्री वी विल पास. ओके, आफ्टर मिस जो फर्स्ट टू एंट्रीज हैं उसके बाद एक और एडिशनल एंट्री इसमें हम पास करेंगे, दैट विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, सो अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस केस 2 ही चल रहा है अभी. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग his share of goodwill or capital in kind. In kind means he brings like stock, building, plant, means fixed capital, your current asset, debtors. मतलब वो इनमें से कुछ भी लेके आ रहा है बट एज ए कैपिटल और एज ए गुडविल इंस्टेड ऑफ कैश. कैश की जगह पर वो कुछ एसेट्स वगैरह लेके आ रहा है. देन एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री है दैट विल बी चेंज. Instead of cash, we will debit that assets. Okay, like stock account debit, building account debit to premium for goodwill account. Like this. अगर वो स्टॉक यानी कि कैश को ना लाके स्टॉक या बिल्डिंग की फॉर्म में कुछ भी लेके आ रहा है बिजनेस में फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, then this entry you will pass. Okay, stock account debit means any asset हो सकती है वो asset account debit to premium for goodwill account. Okay, instead of cash. Then premium for goodwill account debit to old partners capital account. Second entry जो है that will be same, उसमें कोई change नहीं आएगा. Okay, only first entry जो है उसमें change आएगा. So open students page number 4.34 in DK Goyal book, illustration number 36. This one, premium brought in kind. Okay, I'm reading this statement. Listen carefully, students. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5. Okay, here two partners A and B and sharing ratio in 7:5. On April 1st, 2021, they admit C as a new partner. C coming for 1/6 share. Okay, so the new ratio will be 13:7:4. New ratio also given, right? So you can calculate sacrificing ratio because old ratio and new ratio both ratios are given in your question. Now you can calculate first of all sacrificing ratio. Okay, and C contributed the following assets towards his capital and his share of goodwill: stock 60,000, debtors rupees 80,000, land rupees 2 lakh. सी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एसेट्स की फॉर्म में अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों को, और लेके क्या क्या आ रहा है देख लीजिए. स्टॉक जो है रुपीज 60,000, डेटर्स रुपीज 80,000, लैंड रुपीज 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 1,20,000. ओके, एंड ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज 7,50,000. ओके, अभी यहाँ पर कैपिटल और प्रीमियम जो है वो डिफरेंट नहीं है, अलग से नहीं बताया हुआ. So you have to calculate first of all the share of goodwill of the new partner. यानी कि C के लिए आपको जो goodwill का शेयर है first of all you will calculate. Okay, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फर्म की goodwill mention है. So firms
Goodwill in your question is 7 lakh rupees, 7,50,000. Calculate the 1/6 share, means 3 share of goodwill. 1/6 of 7,50,000. It will be 1,25,000. इट मीन्स अब जो भी वो स्टॉक बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जो भी लेके आ रहा है उसमें से 1,25,000 तो प्रीमियम का ही है. ओके और जो बैलेंस अमाउंट आएगा दैट रिमेनिंग अमाउंट दैट विल बी द कैपिटल. ओके सो एंट्री विल बी, note down the first entry, stock account debit, debtors account debit, और क्या है लैंड भी लिख के आ रहा है, सो लैंड अकाउंट डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट and to seize capital account. Okay, premium for goodwill amount you have calculated 1,25,000. Okay, and stock 60,000, debtors 80,000, land 2 lakh, and plant and machinery 1,20,000. First of all, make an addition, add these items. 2 lakh plus 1,20,000, 320. 320 plus 80, 4 lakh, 4,60,000. Okay, total is the 4,60,000. 4,60,000 minus 1,25,000. उसमें से 125 माइनस कर दो. अब जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी द कैपिटल, सीज कैपिटल, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर 3,35,000. मेंशन बीएफ बैलेंसिंग फिगर, ये आपने कैलकुलेट किया है. ओके एंड सेकेंड एंट्री जो आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करनी है आपको, सेम, देयर इज नो एनी चेंज इन सेकेंड एंट्री. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account and to B's capital account. Sacrificing ratio आपको अपने आप कैलकुलेट करनी है because new ratio and old ratio both ratios are given in your question. So you can calculate by using formula old ratio minus new ratio. Means 7/12 minus 13/24, 5/12 minus 7/24. तो रेशियो विल बी 1:3. सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो है अभी इस क्वेश्चन में 1:3. सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट 1,25,000 in A and B, means 1/4 portion to A and 3/4 portion to B. Calculate these things and put the amounts. 31,250 of A and 93,750. Note down this question solution. In this question, record necessary journal entries in the books. Last entry, see the last entry, last line. Record necessary journal entries in the books of the firm on C's admission and prepare C's capital account. So C's capital account भी आपको prepare करना है, तो एक single line में ही बना सकते हो because assets जो है वो सारी C लेके आ रहा है. So you will show C's capital account. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. Okay. On 2021, and yes, 2021 April 1st. Okay. If any partner brings only cash, then we will show. यहाँ पर हम क्या करते हैं, show क्या करेंगे, by bank. और अगर वो कोई एसेट लेके आ रहा है तो then you will show that asset, name of that assets, like by stock, by debtors, by land, by plant and machinery. अब यहाँ पर बहुत सारी assets हैं तो you can use sundry assets name. Okay, by sundry assets total कर लो इसका 4 lakh
नहीं, कैपिटल के लिए है ना, तो उसने कही उसमें से प्रीमियम लेस करने के बाद 1,25,000 लेस करने के बाद जो कैपिटल की फॉर्म में आया है सारी एसेट्स दैट आर 3,35,000। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो 3,35,000 और सेम अमाउंट दैट इज द क्लोजिंग बैलेंसेस, क्योंकि अभी और अदर इंफॉर्मेशन आर मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ अभी इतना ही आपका अकाउंट बनेगा। तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस कैरी डाउन 3,35,000 closing. Okay, same case, and in this case when goodwill already appears in the books and new partner bring his share of goodwill in cash. Now next subtopic. Okay, when uh, goodwill already appears. Appears in the books. The books means in the balance sheet, and new partner bring his share of goodwill in cash. गुडविल जो है आपके बैलेंस शीट में भी शो हो रही है, और उस केस में साथ में नया पार्टनर जो है वो अपनी प्रीमियम जो है वो कैश में भी लेके आ रहा है. दैट इज द केस इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इफ द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग गुडविल जो अकाउंट है विल हैव टू बी रिटर्न ऑफ. जो पहले से ही बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो रिटर्न ऑफ किया जाएगा. उसको रिटर्न ऑफ करना होगा हमें. किसमें रिटर्न ऑफ किसमें होगा ये? फॉर दिस पर्पस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड. ओके, सो द एंट्री जो इसमें पास करेंगे, नोट डाउन दिस एंट्री. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. यहाँ गुडविल आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो, सो गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ओके, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा. सो इलस्ट्रेशन नंबर 37. Illustration number 37, page number open, page number 4.35. This is the illustration you can see in the books. Illustration 37, Aarti and Bharti, right? Open this page. Aarti and Bharti are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. यहाँ दो पार्टनर हैं. Ratio is Aarti and Bharti 3:2. Okay, the admitted Sarthi as a new partner and new profit sharing ratio will be 2:1:1. New partner Sarthi जो है admitted है Sarthi, and now the new ratio is 2:1:1. Okay, so in this question old ratio and new ratio both ratios are given, so you have to calculate first of all sacrificing ratio. आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले sacrificing ratio कैलकुलेट करेंगे, right? Then Sarthi brought ₹1 lakh for his share of goodwill. Sarthi जो है वो goodwill लेके आ रहा है कैश में. So goodwill already appeared in the books of Aarti and Bharti at ₹60,000. जो already appeared है जो books में यानी कि बैलेंस शीट में already appeared goodwill है, that is the 60,000. First of all we will write off the 60,000. Okay, उसको हम write off करेंगे उस goodwill को in old partners in old ratio. Okay, so first entry जो इसमें आप करेंगे, Aarti's capital account debit, Bharti's capital account debit to goodwill account. Note down first entry, Aarti's capital account debit, Bharti's capital account debit
टू गुडविल अकाउंट इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। ये एंट्री आपकी हमेशा ओल्ड रेशो में ही होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी अपीयर गुडविल है उसको राइट ऑफ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स उसको ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करेंगे। ओके, सो amount is totally amount is 60,000. Divide 60,000 in 3 ratio 2, means 3 by 5 of 60,000 you will show in Aarti's capital and 2 by 5 in Bharti's capital. Calculate kar lo, 36,000 and 24,000. 36,000 and 24,000, right? First entry clear. After then 1 lakh rupees he brings new partner for her share of goodwill. So second entry, bank account debit to premium for goodwill account. That those entries are same जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. ओके, सेम टॉपिक. तो यहाँ से आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेनी है दोनों रेशोज की हेल्प से. देन सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट and amount is 1 lakh. Third entry, premium for goodwill account debit to old partners capital. अब old partners which one? जो sacrifice कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लो. दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों का ही नेम आएगा. टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट. ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन इज 2:3. जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये रेशियो आ जाएगी 2:3. नाउ यू विल डिवाइड 1 lakh in this ratio, 2 by 5 and 3 by 5. So it will be 40,000 and 60,000. Total is rupees 1 lakh, right? Now the third case, third and last case of accounting treatment of goodwill. फर्स्ट केस क्या था, जब वो प्राइवेटली लेके आ रहे हैं. सेकंड केस व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो कि हमने ये अभी तक कंप्लीट किया है. इसमें जो सब टॉपिक के साथ ये अब फिनिश हुआ आपका टॉपिक. एंड नाउ थर्ड टॉपिक, थर्ड केस, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब वो नया पार्टनर है अपना शेयर जो है वो कैश में नहीं लेके आता. ओके, सो गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन some consideration in money or money worth has been paid for it. तभी हम इसको consider करते हैं. It means that only purchased goodwill can be recorded in the books at the time of admission, retirement, and death of partner. और in case of change in profit sharing ratio, जो कि हमने पहले चैप्टर किया है, so goodwill account cannot be raised in the books of the firm because it will be non-purchased goodwill. ये परचेज नहीं की गई है, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, खुद की सेल्फ जनरेटेड, एंड नो कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट. ओके, सो व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएटेड एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So for this purpose, new partner's current account is debited from his share of goodwill, and old partner's capital account are credited in their sacrificing ratio. Okay, it means अगर जब नया पार्टनर नहीं लेके आ रहा सपोज, और अगर तब भी हम उसको शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका नया अकाउंट ओपन किया जाता है नए पार्टनर का, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. हम उसके कैपिटल में उसकी ट्रीटमेंट ना करके गुडविल की उसके करंट अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं. अगर आप उसके कैपिटल में इसकी ट्रीटमेंट करोगे तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है. एक तरफ तो आप उसका बैलेंस जो है कैपिटल का क्रेडिट साइड में शो करते हो, उधर से जब आप गुडविल को डेबिट करते हो तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली उसका माइनस हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए पार्टनर का यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा थर्ड केस में. ओके, तो नोट डाउन द थर्ड केस.
Third case, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, कैश में नहीं लेके आ रहा हूं, तो इस केस में अब हम उसका क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करेंगे. सो नोट डाउन द एंट्री, जर्नल एंट्री जो हम उसमें पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, right? In which ratio? In sacrificing ratio. Only one entry you will pass. इसमें एक ही एंट्री पास होगी और वो क्या है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन. जो भी वो लेके आएगा पार्टनर, जो उसको लेके आना था, नहीं लेके तो वो आ नहीं रहा, तो जितना शेयर उसका बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है. मींस फर्म की गुडविल आपके क्वेश्चन में गिवन होगी. अगर इन केस आपके क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन नहीं है तो उस केस में आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है. आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, मींस यूजिंग एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड मेथड, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में करनी है. आप उन मेथड्स को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फर्म्स गुडविल एंड देन यू विल कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल. अब उसका आप शेयर भी निकालेंगे, इसमें खुद निकालेंगे क्योंकि वो लेके नहीं आ रहा, तो यू हैव टू कैलकुलेट the share of new partners goodwill. Okay, and then you will divide that portion in old partners capital account. Okay, or in which ratio? In sacrificing ratio. यहाँ पर आप नोट कर लो, उसके कैपिटल अकाउंट को हमें कभी भी डेबिट नहीं करना, उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करना है. ठीक है, अगर हम उसके न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो इट मींस हिज कैपिटल इज रिड्यूस्ड, उसका कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ओके, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं सेम इसके इस मेथड से. सो ओपन पेज नंबर 4.36, illustration number 38. This one you can see on screen, illustration number 38, page number 4.36. I'm reading statement. Listen carefully, students. A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. In this question, दो पार्टनर हैं आपके पास, A and B. Okay, इनकी रेशियो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, that is the 3:2. This is the old ratio. They admit C as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio also given 5:4:3. This is the new ratio. So you can calculate sacrificing ratio by using formula old ratio minus new ratio. कर लोगे आप. Then C brings into the business 50,000 for his capital, but could not bring any amount for the goodwill. अब वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, बट यहाँ पर गुडविल के लिए अमाउंट नहीं ला रहा. सो द फर्म गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड ₹48,000. फर्म की गुडविल जो है आपके क्वेश्चन में गिवन है 48,000. पास जर्नल एंट्री. ओके, तो करते हैं, चलिए. First entry, he brings his capital. So first entry is note down, bank account debit to C's capital account. अब प्रीमियम नहीं आ रहा ना, क्योंकि कैश में वो नहीं लेके आ रहा, तो ओनली यू विल शो ओनली कैपिटल. ओके, 50,000. Second entry, C's current account debit to A's capital account to B's capital account. In which ratio? Sacrificing. और in this question जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, that will be 11:4. Sacrificing ratio नोट कर लो, 11:4 आ जाएगी after deducting old ratio minus new ratio. ठीक है, तो ये 11:4 है, तो you will divide 50,000 in 11/15 and 4/15. 50,000 को आप डिवाइड कर दो
नहीं सॉरी 50,000 जो है वो क्या थी कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गुडविल गिवन है 48,000 से। यू विल कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स। गुडविल जो है फॉर्म की गिवन है 48,000, आपको सी का शेयर कैलकुलेट करना है, दैट इज द 1/4। तो ये आएगा 4 1 जा 4 2 जा 12,000। उसका शेयर जो गुडविल का आ रहा है दैट इज द 12,000। ठीक है, सी इज करंट अकाउंट डेबिट बाय 12,000। नाउ डिवाइड 12,000 इन रेशो 11/4 मींस 11/15 एंड 4/15। 11/15 multiplied by 12,000 of A's capital and 4/15 of 12,000। आप शो करेंगे उसको B's कैपिटल में। ये अमाउंट कैलकुलेट कर लो आप 8800 and 3200। ओके, दिस इज द थर्ड केस। बस ये 3 केस ही हैं हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के गुडविल के इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सपोज when goodwill is already appeared in the books of new partner and new partner does not bring his share of goodwill in cash। अब सेम यही केस है कि वो कैश में तो नहीं लेके आ रहा, और इस केस में भी आपके पास ऑलरेडी अपीयर्ड हो सकती है गुडविल, जो कि इससे पहले मैंने अभी सेकंड केस में भी कराया आपको। तो सेम एंट्री यू विल पास, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री है वो सेम होगी जो आपको हमने कराई है। ये जो सेकंड इसका सिचुएशन है वो आपको यही एंट्रीज करनी है, बट अगर ऑलरेडी अपीयर्ड है गुडविल आपके पास, देन यू विल पास सेम एंट्री मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। सेम एंट्री आपको पास करनी है। और बाकी उसके बाद ये केस है जैसे कि वो कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल की एंट्री कर दो आप, एंड अगर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा तो देन यू विल पास दिस एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और बस ये है कि जो राइट ऑफ की एंट्री है, रिटर्न ऑफ की जो एंट्री है गुडविल की, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले करनी है। यू विल पास फर्स्ट एंट्री जो है रिटर्न ऑफ की एंट्री, ओके, जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है आपके पास, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज आपके पास जो क्वेश्चन आपको करने हैं, नोट डाउन अप टू 49। You will try up to 49 question from exercise. In these cases थोड़ा सा ये चेंज आ सकता है कि कई बार कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर रहा होगा, तो वो केस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये केस भी हो सकता है कि कोई पार्टनर उसमें सेक्रीफाइस कर ही ना रहा हो। सपोज यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और जब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हो तो उस केस में सिर्फ ए की सेक्रीफाइसिंग आ रही है और बी की 0 आ रही है सपोज, तो उस केस में आपको ए का ही मेंशन करना है। यहाँ पर एंट्री विल बी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, तो बी का नाम नहीं आएगा उस केस में। ओके, ये इट मींस जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है आपने उसी का नाम यहाँ पर मेंशन करना है इस एंट्री में। और वो केस सेकंड केस भी हो सकता है, चाहे वो पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा, दोनों ही सिचुएशन में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है आपको उसी को मेंशन करना है इस एंट्री में, और जो नहीं लेके आ रहा, जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसका नेम मेंशन नहीं होगा, राइट। या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इसके बाद एक और केस आएगा आपके पास गेनिंग का। सपोज ए और बी पार्टनर है एंड सी इज कमिंग एज ए न्यू पार्टनर। अब सी तो देखो गेन कर ही रहा है क्योंकि वो न्यू पार्टनर आ रहा है, और यहाँ बी सेक्रीफाइस करने की बजाय भी अगर गेन कर रहा हो तो सेक्रीफाइस फिर कौन कर रहा है? ओनली ए। तो ओके, तो जैसे सी ए के गुडविल या कुछ भी पे कर रहा है उसके बाद कंपनसेट कर रहा है, सेम जो पर्सन ओल्ड पार्टनर अगर गेन करेगा तो वो भी कंपनसेट करेगा उसी ओल्ड पार्टनर को जिससे वो ले रहा है। ऐसा एक केस हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 48 में, आप देख सकते हो 48 क्वेश्चन, पेज नंबर 4.46। Hari, Ravi and Kavi were partners in a firm sharing profits and in the ratio 3:2:1. They admitted Guru as a new partner for 1/7 share. Very important question. So your new profit sharing ratio will be 2:2:1. आपके पास old ratio भी given है, new ratio भी given है. You have to calculate first of all sacrificing ratio. Guru brought rupees 3 lakh for his capital and 45,000 for 1/7 share of goodwill. Showing you are working clearly.
सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे ना, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर रहे हैं, तो उसके क्या वर्किंग है वो एक बार देख लीजिए आप। ओल्ड रेशो है 3:2:1 and new ratio is 2:2:2:1. Calculate sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. This is your formula. Okay, तो हरी के लिए है 3/6 minus 2/7, ये आएगा 9/42, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेकंड जो है रवि 2/6 minus 2/7, इसका आएगा 2/42, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड थर्ड जो है वो है कवि 1/6 minus 2/7, it will be 5/42 minus में नेगेटिव, दैट मीन्स ये जो है वो गेन कर रहा है, इसे आगे मैंने गेन लिख दिया। ओके, एंड गुरु जो कि न्यू पार्टनर है इसका इस क्वेश्चन में फॉर 1/7 शेयर, तो ये तो वैसे ही गेन कर रहा है। ओके, नया पार्टनर तो गेन करेगा ही क्योंकि वो तो अभी आया ही है, और यहाँ पर कवि जो है ये भी गेन कर रहा है। जैसे गुरु कंपनसेट करता है ना, ऐसे ही कवि भी कंपनसेट करेगा, लेकिन गुरु जो है वो न्यू पार्टनर अगर वो अपनी शेयर ऑफ जो गुडविल है कैश में लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मेंशन करोगे, नहीं लेके आ रहा तो उसके करंट अकाउंट के नाम से उसको मेंशन करोगे। लेकिन कवि तो ऑलरेडी यहाँ पर पार्टनर है पहले से ही, तो आप कवि कैसे कंपनसेट करेगा, कवि अपनी कैपिटल से कंपनसेट करेगा। ओके, तो कवि कैपिटल अकाउंट जो विल अब इसको क्रेडिट करने की बजाय आप इसको डेबिट करोगे। ओके, और अब सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, ये दो पार्टनर्स। ओके, अभी एंट्रीज नोट कर लो इसकी, और कैलकुलेशंस कैसे होंगी ये देख लो। गुडविल आपके पास मेंशन है क्वेश्चन में, गुरु लेके आया है 3 लाख कैपिटल और 45,000 फॉर 1/7 शेयर ऑफ गुडविल। अगर 45,000 1/7 शेयर के लिए थी तो आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर उल्टा करके इसको रेसिप्रोकल 7/1। तो यहाँ पर फर्म्स की गुडविल आप कैलकुलेट कर लो सबसे पहले, तो 3,15,000 फर्म की गुडविल आएगी। ओके, ये जो वो लेके आ रहा है इससे तो आप एंट्री करोगे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू हरीश कैपिटल टू रवीज कैपिटल, मतलब इन दोनों को ही वो देगा बस। और अब तीसरी जो एंट्री इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो क्या है, कविस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल टू रवीज कैपिटल। लेकिन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, फर्म की गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली है 3,15,000, और शेयर आप कैलकुलेट करोगे जितना इसने गेन किया 5/42। ओके, 5/42 शेयर उसका आएगा 37,500। ये अमाउंट भी अब आप हरी और रवि को पे करोगे। ओके, तो एंट्री क्या होगी, जो थर्ड एंट्री इसमें मैं नई एंट्री ऐड करवा रही हूँ, नोट कर लो, कविस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल टू रवीज कैपिटल, ये न्यू एंट्री इसमें ऐड होगी आपके पास। नोट डाउन दिस एंट्री, कविस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल बाय 37,500। विच रेशो, ये जो इन्होंने सेक्रीफाइस की है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके, आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन दोनों, सेक्रीफाइसिंग रेशो में आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, सेपरेट एंट्री आपको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल टू रवीज कैपिटल, थर्ड कविस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल टू रवीज कैपिटल। क्लियर, रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 9:2 मींस 9/11 into 37,500 और 2/11 of 37,500, इसको कैलकुलेट कर लो। ये शेयर आपको यहाँ पर शो करना है। ओके, नाउ द टॉपिक इज कंप्लीटेड। यू विल do first, you will do up to 49 question from back exercise of this chapter. Okay students, thank you so much, have a nice day. If you have any queries now you can ask.